نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هدى الله هو الهدى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لي حجة يا رب العالمين ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ فضل و کرم، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آج ہم اپنا لیکچر نمبر 8 شروع کریں گے، اور اس لیکچر میں ہم نے پچھلا لیکچر شروع کیا تھا مد کا بیان، اس لیکچر میں بھی ہم اسی مد کے بیان کو ہم آگے پڑھیں گے، یعنی مد اینڈ اٹس ٹائپس. اور ہم نے یہ جانا کہ مد کا جو لغوی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ پھیلانا، آواز کو پھیلانا، آواز کو لمبا کرنا. اور ہم نے یہ جانا ابھی تک کہ جو مد ہے وہ صرف 3 حروف پہ آ سکتی ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حروف مدہ صرف 3 ہے. ان میں سب سے پہلے الف ہے، جبکہ الف سے پہلے زبر ہو، اور جیسا ہم نے جانا کہ الف سے پہلے اگر زبر ہوتی ہے تو الف پہ مد آتی ہے. اس میں کچھ ایکسیپشن سے لاسٹ میں ہم پڑھیں گے وہ کب، مگر ابھی آپ یہ جانیں گے کہ الف حرف مدہ ہے جب الف سے پہلے زبر ہو، یعنی الف کے حرکت، الف جو حرف ہے اس حرف سے پہلے یا اس یہ جو حرف تہجی میں سے ایک حرف ہے اس حرف سے پہلے کسی بھی حرف پہ زبر. دوسرا حرف جس پہ مد آتی ہے وہ ہے واو، اور جب واو ساکن ماقبل پیش ہو. تیسرا حرف جس پہ مد آتی ہے وہ ہے یا، کس صورت میں؟ جب یا ساکن ماقبل زیر. اور ان تینوں حروف کو، یعنی ان تینوں جو حروف مدہ ہے ان کو ہم نے ایک ہی لفظ میں مقید کیا تھا، قید کیا تھا، وہ ہے نوحیہا. اب دیکھیے نون جو ہے اس پہ پیش ہے، اس کے بعد واو ساکن ہے، تو واو ساکن ماقبل پیش تو واو مدہ ہو گیا. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یا ہے ساکن ماقبل ہے زیر، یعنی اس سے پہلے حرف پر زیر ہے تو یا مدہ ہو گیا. نو ہم نے لمبا کیا، حی ہم نے یا کو لمبا کیا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں الف جو ہے اس سے پہلے بھی ہا پر زبر ہے تو الف بھی مدہ ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حروف مدہ کو ان کے کنڈیشن کے ساتھ یاد رکھنے کے لیے آپ کو یہ جو ورڈ یہاں پر ہے نو حی ہا، اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے. تو ہم نے جانا کہ یا تو حرف مد الف ہے، یا تو حرف مد واو ساکن ماقبل پیش ہے، یا تو حرف مد یا ساکن ماقبل زیر ہے. اس کے بعد ہم نے جانا کہ مد کی جو اصل میں قسمیں ہیں وہ 2 ہیں. ایک تو ہے مد اصلی، اور مد اصلی تبھی مد اصلی ہے جب صرف حرف مد ہمارے پاس ہو. اور دوسری قسم جو ہم نے پڑھی تھی پچھلے لیکچر میں اس کو ہم کہتے ہیں مد فرعی. مد فرعی وہ مد ہے جب حرف مد کے بعد ہمارے پاس کوئی نہ کوئی سبب آئے، اور ہم نے جانا سبب یا تو حمزہ ہو سکتا ہے یا پھر سکون ہو سکتا ہے جس کو ہم جزم کہتے ہیں. ان 2 اسباب میں سے، ان 2 ریزنز میں سے کوئی بھی ریزن آئے تو مد اصلی جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے مد فرعی میں. اب کس وقت کیسے کنڈیشن میں آتی ہے؟ تو مد فرعی کو ہم نے جانا کہ اس کی مزید اور قسمیں ہیں، مگر بنیادی طور پر جو مدوں کی قسمیں ہیں وہ صرف 2 ہے، یا تو مد اصلی ہے یا پھر مد فرعی ہے. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا مد اصلی جو اصلاً مد ہے نا، اسی لیے اس کو مد اصلی کہتے ہیں. اس کا دوسرا نام جو ہے وہ مد طبیعی ہے، یعنی بنیادی طور پر مد. اور یہ مد اصلی جو ہے یہ صرف ایک الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے. جیسے ہم پڑھیں گے آ، یعنی پہلا حمزہ زبر آ،
उसके बाद अलिफ लगाइए तो बन जाएगा आ, बस एक अलिफ। एक अलिफ मतलब जब तक आप इस उंगली को बंद करें और खोलें इसको हम एक अलिफ कहते हैं, यानी 2 हरकत या एक अलिफ। इसी तरह हमारे पास है ही, या को भी एक अलिफ के बराबर। इसी तरह हमारे पास है नू, वाव को भी एक अलिफ के बराबर लंबा करना। तो ये हमारे पास मद असली है। इसके बाद मद फरई उस मद को कहते हैं जिसमें इस हरफ मद के बाद हमारे पास 2 असबाब में से कोई सबब मौजूद हो। कौन सा सबब है? एक या तो हमजा होगा, दूसरा या तो सुकून होगा। और आप देखेंगे या तो ये सुकून हमेशा पाया जाएगा या इस सुकून को हम आर्जी लाएंगे। इसको हम मजीद आज पढ़ेंगे कि मद फरई की असल में बुनियादी तौर पर 4 किस्में। ठीक है, मद असली तो खैर हमने समझ लिया मद असली क्या होता है, मगर जब हम मद असली के बाद मद फरई पर आ जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मद फरई की अब बुनियादी तौर पर हमारे पास 4 किस्में। सबसे पहले किस्म है मद मुत्तसिल। तो मद मुत्तसिल क्या है? मद मुत्तसिल हम कह सकते हैं ये मद फरई की वो किस्म है जिसमें हर्फ मद के बाद, यानी इन 3 सूरतों में, चाहे अलिफ, चाहे वाव, चाहे या, यानी इनमें से कोई भी हर्फ मद आए, उसके बाद हमेशा उसके बाद हमारे पास हमजा हो और वो हमजा उसी कलमे में हो। हर्फ मद के बाद सबब मद हमजा की शक्ल में हो और वो हमजा हर्फ मद के फौरन बाद उसी कलमे में। इस मद को हम कहते हैं मद मुत्तसिल। मुत्तसिल का मतलब होता है जुड़ा हुआ। हर्फ मद के बाद सबब मद एक ही कलमे में और वो सबब जो है वो हमजा हो। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं या, आप देख लीजिए अलिफ जो है ये हर्फ मद है और इसके बाद सबब मद हमजा है और दोनों जो है ये एक ही कलमे में। इस मद को हम कहते हैं मद मुत्तसिल। तो मद मुत्तसिल जो है ये मद फरई की पहली किस्म है। ठीक है, मद फरई की पहली किस्म मद मुत्तसिल है जिसमें हर्फ मद के बाद हमारे पास उसी कलमे में हमजा आए। और मिसाल आपने दी यहां पर जा, वाव की मिसाल, सून, इसी तरह या की मिसाल सीअत। और इस मद का दूसरा नाम जो हमने बताया था ये मद वाजिब है। और हमने आपको बताया कि इसकी मिकदार जो है ये 2 अलिफ या 3 अलिफ के बराबर है, यानी इसको अच्छा लंबा करना है। ठीक है, इस तरह आपने देखा होगा कुर्रा हजरात जो है, कारी हजरात, वो उसको लंबा करते हैं। और अगर आप देखेंगे मुसहिफ तो आप देखेंगे कि ये जो मद मुत्तसिल है ये इस शक्ल में बनाई भी जाती है, लहर की शक्ल में। आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप देख लीजिए। जबकि मद जो असली हमारे पास है उस पर कोई भी शक्ल नहीं होती। ठीक है, वो बिल्कुल क्लियर होता है, जैसे नू पढ़ा हमने, हा पढ़ा, कोई मद नहीं बनी होगी। मगर जब भी आप देखेंगे मद मुत्तसिल या मद फरई तो आप देखेंगे कि उस पे शक्ल होगी मद की बनी हुई। जैसे जा पे यहाँ पर मद की शक्ल है, सू उन के ऊपर, वाव के ऊपर ये मद है, शक्ल बनी हुई है। और इसी तरह सी अत, या के या साकिन माकबल जेर जो हर्फ मद है उसके बाद सबब मद हमजा की शक्ल में उसी कलमे में है। और आप देख सकते हैं कि इस मद की शक्ल मौजूद है। ये तो हुई पहली किस्म जिसको हमने नाम दिया मद फरई की, मद मुत्तसिल। दूसरी किस्म है मद मुनफसिल। तब देखिए बहुत मामूली सा फर्क है, अगर आप जाने तो वो ये है कि हर्फ मद के बाद सबब मद हमजा ही होगा मगर वो दूसरे कलमे में होगा, यानी ये 2 अलग अलग कलमे होंगे। हर्फ मद एक कलमे में होगा जबकि सबब मद हर्फ मद के फौरन बाद आएगा मगर दूसरे कलमे में। मिसाल के तौर पर हमारे पास है इन्ना अअतैनाका। ये इन्ना का जो अलिफ है ये असल में हर्फ मद है। ठीक है, इसके फौरन बाद आता है अअतैनाका। आप देखेंगे ये जो अलिफ बना हुआ है ना अअतैनाका, जिस पर जबर है, वो असल में अलिफ नहीं, वो हमजा है। क्योंकि हमने जाना अलिफ तभी अलिफ है जब वो खाली होगा। अगर अलिफ पे जबर, जेर, पेश कुछ भी आप देखेंगे तो वो अलिफ नहीं माना जाएगा, वो हमजा है। तो इन्ना का जो अलिफ है ये हर्फ मद है
अअतैना का जो हमजा है बशकल अलिफ, ये इसका सबब है, और इन्ना एक कलिमा है, अअतैना का दूसरा कलिमा है। तो ऐसी सूरत में जब हरफी मद के बाद हमारे पास सबब मद दूसरे कलिमे में आए, इस मद को हम कहते हैं मद मुनफसिल। मुनफसिल मतलब फासला। हरफ मद के बाद सबब मद में यानी इनके जो हरफ मद के बाद सबब मद का ये जो कंडीशन है वो अलग अलग कलिमे में फौरन बाद है। हरफ मद के बाद सबब मद फौरन बाद है मगर दूसरे कलिमे, इसीलिए इसको हम कहते हैं मुनफसिल। आप याद रखिए, मुनफसिल का मतलब जिसमें फासला है हरफ मद और सबब मद। एक और मिसाल है हमारे पास, क़ालू। आप देखिए क़ालू में जो वाव साकिन माकबल पेश है तो यह हरफ मद वाव है। इसके बाद है आमन्ना। ये जो आप देख रहे हैं तो असल में क्या है कि आपको दिख रहा है ये अलिफ है, मगर अलिफ के साथ ये खड़ी अलिफ एक और है तो ये हमजा बन गया। तो ये जो हमजा है आमन्ना का पहला हमजा, ये क़ालू के वाव साकिन माकबल पेश हरफ मद के लिए सबब बन गया, और ये सबब जो है ये दूसरे कलमे में, हरफ मद एक कलमे में है, सबब मद दूसरे कलमे में, तो हम ये कह सकते हैं कि ये मद मुनफसिल है। इसी तरह एक और मिसाल है फी अनफुसिहिम। अब देखिए फी अलग कलमा है, अनफुसिहिम अलग कलमा है। फी या साकिन माकबल जेर तो या मद्दा है, उसके बाद अनफुसिहिम का जो ये अलिफ असल में हमजा है, यानी हमजा बशकल अलिफ, क्योंकि अलिफ के ऊपर जबर है, तो ये जो हमजा इसका सबब है ये दूसरे कलमे में। तो ऐसी मद को हम कहते हैं मद मुनफसिल जिसमें फासला हो। इसको मद जायज भी कहते हैं, और ये भी बकदर 4 हरकात यानी 2 अलिफ या 3 अलिफ के बराबर इसको भी लंबा किया जाता है, और इस मद को भी मद मुत्तसिल की तरह इंडिकेट किया जाता है, दिखाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इन्ना के ऊपर मद बनी हुई है। अगर आप मुस्हिफ कुरान खोलेंगे तो आप देखेंगे इन्ना जब भी लिखा होगा तो मद होगी। क़ालू आमन्ना पे मद बनी है, फी अनफुसिहिम पे मद बनी है, तो इसको हम कहते हैं मद मुनफसिल। अब जो तीसरी किस्म मद फरई की जो है वो है मद लाजिम। मद लाजिम तीसरी किस्म है, और ये तमाम मदों में से सबसे लंबी मद है। मद लाजिम किस मद को कहेंगे? कंडीशन वही है कि हरफ मद के बाद सबबी मद जो है वो या तो जज़म होगा, सुकून। अभी तक हमने देखा सबबी मद हमजा था, मगर मद लाजिम में क्या होगा? इसमें सुकून होगा लाजिम। लाजिम मतलब ओरिजिनल सुकून, ठीक है, या तशदीद आएगी। अगर आप देखेंगे तशदीद भी सुकून ही होता है। तो आप याद रखिएगा मद लाजिम उस मद फरई की वो किस्म है जिसमें हरफ मद के बाद जो सबबी मद है वो सुकून लाजिम यानी ओरिजिनल सुकून की शक्ल में होगा, हमजा नहीं बल्कि सुकून की शक्ल में होगा। चाहे वो सुकून की शक्ल में होगा या तशदीद की शक्ल में होगा, याद रखना चाहिए, सुकून की शक्ल में होगा या तशदीद की शक्ल में होगा। उस मद को हम कहते हैं मद लाजिम। अब मद लाजिम जो है ये ऐसी मद है जिसको सबसे लंबा किया जाता है। तकरीबन इसको 4 अलिफ से लेके 10 अलिफ तक मुख्तलिफ आ रहा है। 4 अलिफ से लेके 10 अलिफ, मतलब जहां तक आपकी सांस है वहां तक आप इसको लंबा कर सकते हैं। इसको कहते हैं मद लाजिम। क्या हो गया मद लाजिम? जिस पर हरफ मद के बाद सबबी मद ओरिजिनल सुकून हो, यानी सुकून लाजिम उसको कहते हैं, सुकून जज़म या तशदीद की शक्ल में, ठीक है। अब ये तो मद लाजिम है, इसकी भी 2 किस्में हैं, ठीक है। आसान, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी में समझा रहा हूं आपको। एक मद लाजिम की जो किस्म है उसको कहते हैं मद लाजिम कलमी। कलमी मतलब पूरा कलिमा। मद लाजिम कलमी जैसे हमारे पास है आना, ये आप देख रहे हैं मद, हरफ मद अलिफ है और सबब मद लाम का जज़म है, लाम का सुकून है, और वो ओरिजिनल सुकून है। और ये आप देख रहे हैं ये पूरा कलिमा है। कलिमा मतलब एक पूरा वर्ड है, आना। इसी तरह
जीम पे तशदीद है और ये इसके लिए सबब बन गया अलिफ के लिए। तो ये जो पूरा आप मद देख रहे हैं इसको हम कह सकते हैं मद लाजिम मगर कलमी। कलमी का मतलब पूरा कलिमा, पूरा लफ्ज। इसी तरह वाला दालीन, दाद के साथ अलिफ हरफी मद है और लाम जो इसके बाद है तशदीद की शक्ल में, तो ये अलिफ के लिए सबब बन गया। और वाला दालीन कलिमा है, इसीलिए इसको कहेंगे हम मद लाजिम कलमी। एक और हमारे पास एक और मिसाल है, अतुहाजुनी। अब यहां पर हमारे पास दो मद लाजिम, एक तो हा अलिफ हरफ मद, इसके बाद जीम के ऊपर तशदीद है। दूसरा यूनी वाव हरफ मद, वाव साकिन माकबल पेश, उसके बाद नून पे तशदीद है। तो यहां पर हमारे पास दो मद लाजिम है और ये पूरा कलिमे में है। कलिमा मतलब पूरा वर्ड है, एक पूरा लफ्ज है। दूसरी मिसाल है मद लाजिम हरफी। अब देखिए मद लाजिम हरफी क्या होता है। ये वो मद लाजिम है जो हरूफ मुक़त्तआत पर पाई जाए। आपको पता है हमारे पास कुरान मजीद में हरूफ मुक़त्तआत है, जैसे अलिफ लाम मीम, ठीक है, अलिफ लाम मीम, इसको हम कह सकते हैं हरूफ मुक़त्तआत। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं क़ाफ साद नून अलिफ लाम मीम, समझ रहे। जो मद हमारे पास हरूफ मुक़त्तआत पर पाई जाती उसको हम कहते हैं मद लाजिम हरफी, क्योंकि ये हरफ पर है। और जो मद लाजिम हमारे पास कलिमे में पाया जाए उसको हम कहते हैं मद लाजिम कलिमी, ठीक है। जो नईम भाई है, अगर आप ये ना लिखाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं दिखा रहा हूं ऑलरेडी, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास तीन मदें आ गई, तीन मदों की किस्में आ गई। मद फरई में से सबसे पहले मद मुत्तसिल, हरफी मद के बाद सबबी मद एक ही कलमे में, और सबबी मद जो है वो हमारे पास हमजा की शक्ल में। दूसरा मद मुनफसिल, हरफी मद के बाद सबबी मद, और जो सबबी मद है वो है अलग कलमे में। आप देख रहे हैं यहाँ पर अलग कलमे में, फौरन बाद है मगर अलग कलमे में, मद मुनफसिल। तीसरी है मद लाजिम, हरफी मद के बाद हमारे पास है सबबी मद, मगर वो सबबी मद है सुकून लाजिम। सुकून लाजिम यानी जज़म, ओरिजिनल जज़म या तशदीद, क्योंकि तशदीद भी असल में जज़म ही होता है, अगर हम आगे इसको पढ़ेंगे। अब मद लाजिम को मैंने आपको बताया दो किस्में हो सकती हैं बहुत आसानी के साथ। या तो मद लाजिम पूरे लफ्ज पे होगी, जिसको हम कह सकते हैं वर्ड है, तो उसको हम कहेंगे मद लाजिम कलमी, जैसे आपके सामने मिसालें हैं। ऐसे हो सकता है मद लाजिम हरफी। मद लाजिम हरफी का मतलब क्या है, जिसमें मद लाजिम हो मगर हरूफ मुक़त्तआत पर, यानी हमारे पास बहुत सारी सूरतें जमा होती हैं और जिसके इब्तिदा में अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ ऐसे हरूफ रखे हैं जिनका असल मानी अल्लाह तबारक व तआला खुद जानता है। जैसे अलिफ लाम मीम है, नून है, क़ाफ है, अलिफ लाम रा है, यासीन है, उन पे जो मद है उसको कहते हैं मद लाजिम हरफी, ठीक है। अब यहाँ पर एक और किस्म हमने लिखी है मद लाजिम लीन, मगर इसको अभी आप छोड़ दें क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। हमारे पास जो फोर्थ इंपॉर्टेंट वन है जो मद फरई की किस्म है वो मद आरिज। देखिए मद आरिज किस मद को कहेंगे, ये मद फरई की वो किस्म है जब हमारे पास हरफी मद के बाद, याद रखिएगा, हरफी मद के बाद जो सबबी मद आए वो सुकून हो मगर वो आरजी सुकून हो। देखिए मद लाजिम में हरफी मद के बाद सबबी मद जो था वो लाजमी सुकून था, ओरिजिनल सुकून था। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा आल आना पे लाम पर ओरिजिनल सुकून है, हा या पे जीम पे ओरिजिनल तशदीद, तशदीद सुकून का ही असल में एक हिस्सा होता है। वलद्दालीन में जो अलिफ के बाद लाम है ओरिजिनल सुकून है, ठीक है। तो ऐसे हम कह सकते हैं इसको, हम सिंपली ये ओरिजिनल है यानी मद लाजिम है।
जबकि मद आरिज इसके बरक्स में कौन है, जब हरफ मद के बाद जो सबब आए वो आरिजी सुकून हो। आरिजी मिसाल के तौर पर आपके सामने मैं कहूंगा, यहां पर हमारे पास लफ्ज है तुकज़्ज़िबानी, तुकज़्ज़िबानी, तो अलिफ आप देख रहे हैं कि अलिफ से पहले जबर है, तो यहां मद असली है, ठीक है। मगर मान लीजिए आपने सुकून, आपने यहां पर वक्फ किया, आप वक्फ की हालत में जो नून के नीचे जेर है ना, इस पे आप जज्म लाएंगे और ये यानी इस पे आप आरजी सुकून लाएंगे। कैसे पढ़ेंगे, तुकज़्ज़िबान, हरफ मद के बाद सुकून आरिज आ गया, ओरिजिनल नहीं, टेम्पररी सुकून आ गया, टेम्पररी सुकून आ गया, इसीलिए इस मद को हम कहते हैं मद आरिज। मद आरिज, मद लाजिम नहीं। अगर ओरिजिनल सुकून होता हम कहते हैं मद लाजिम है, क्योंकि टेम्पररी आया इसलिए हम कहते हैं इसको मद आरिज। और दूसरी बात, अक्सर ये जो मद आरिज है ये उसी सूरत में आती है जब हम आखिर में वक्फ करते, ठीक है। जैसे आपने यहाँ तुकज़्ज़िबानी था, आप ठहरना चाहते हैं तो कानून यह है कि आखिरी आप हर्फ को साकिन बनाएं। जैसे आप पढ़ेंगे तुकज़्ज़िबान, अब ये नून पे जो सुकून आया, टेम्पररी सुकून, ये टेम्पररी सुकून इस अलिफ के लिए सबब बना, तो इसीलिए इस मद को हम कहते हैं मद आरिज। मद आरिज, आरजी मद। और चूंकि वक्फ की हालत में आया तो हम कह सकते हैं मद आरिज वक्फी। मद आरिज वक्फी यानी आरजी मद है ये, और वक्फ की सूरत में। इसी तरह हमारे पास है नस्तईनु, मगर जब हम ठहरते हैं हम पढ़ते हैं नस्तईन, क्योंकि नून पे हमने आरजी सुकून लाया, हमने नून पे यहां पर आरजी सुकून लाया। और जो नून पे हमने आरजी सुकून लाया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहां पर इसके लिए आरजी जिसको हम कह सकते हैं सबब लाया, तो जो या पे जो मद आई इसको कहते हैं मद आरिज वक्फी। इसी तरह यअलमून वक्फ की हालत में बनेगा यअलमून, तो वाव के ऊपर मद जो आएगी ये मद आरिज वक्फी कहलाएगी, ठीक है। अब ये मद आरिज वक्फी भी बराबर मद मुत्तसिल और मद मुनफसिल की तरह 3 अलिफ के बराबर लंबी की जाएगी, मगर सबसे लंबी मद जो है वो मद लाजिम है, चाहे वो हरफी है या चाहे वो कलमी है। कलमी का मतलब पूरे वर्ड में, हरफी का मतलब हरूफ मुक़त्तआत में, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमने मदों के अक़साम पढ़े। हमने जाना कि मद लंबाई को कहते हैं, लंबा करना, खींचना और मजीद लंबा करना आवाज को। ये सिर्फ 3 हरूफ पर मद आती है जिनको हम हरूफ मद्दा कहते हैं, अलिफ माकबल जबर, वाव साकिन माकबल पेश, या साकिन माकबल ज़ेर, ये हमारे पास हरूफ मद्दा है। अगर हरूफ मद्दा हो उसके बाद कोई सबब ना हो, हम उस मद को कहेंगे मद असली, सिंपल मद। उसके बाद हमने जाना कि अगर हमारे पास हरूफ मद्दा के बाद सबब मद्दा हो, और सबब हमारे पास हमने 2 कहे, या हमारे पास हमजा है या हमारे पास सुकून है, ठीक है। अगर हरफ मद के बाद इन 2 असबाब में से, सबब में से कोई सबब आए तो उस मद को हम कहते हैं मद फरई। और मद फरई की मोटे मोटे अंदाज में हमारे पास 4 किस्में हैं। मद मुत्तसिल, हरफ मद के बाद सबब मद एक ही कलमे में, उसको हम मद वाजिब भी कहते हैं। मद मुनफसिल, हरफ मद के बाद सबब मद दूसरे कलमे में, इसको हम मद जायज कहते हैं, ठीक है। और ये दोनों मदें बनी होती हैं, इसको आप देखेंगे मुसहफ में लिखी होती है। उसके बाद हमने जाना मद लाजिम, ये हरफ मद के बाद सुकून लाजिम आएगा, ओरिजिनल सुकून आएगा। और फिर हमने जाना कि ये मद लाजिम सबसे लंबी की अदा की जाती है, काफी ज्यादा, जब तक आपका सांस हो। इसलिए आप देखेंगे कुर्रा हज़रात काफी ज्यादा अलिफ लाम मीम को वलद्दालिन को पढ़ते हैं। और मद लाजिम को हमने जाना कि अगर मद लाजिम कलमे पे आए, जैसे कि आपकी मिसालें यहाँ पर है, तो उसको हम मद लाजिम कलमी कहते हैं। और अगर मद लाजिम हरफ पे आए, हरूफ मुक़त्तात पे आए, तो उसको हम कहते हैं मद लाजिम हरफी, ठीक है। इसके बाद हमने जाना कि आखिर किस्म जो मद फ़रई की है वो मद आरिज है, और ये वो है कि जब हरफ मद के बाद हमारे पास सबब मद जो हो वो सुकून आरिज मतलब टेम्पररी सुकून बन के आए,
اور اکثر یہ کنڈیشن وقف کی صورت میں ہوتی ہے، اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں مد عارض وقفی. اور یہ چونکہ ٹیمپریری مد ہوتی ہے تو یہ بنی ہوئی نہیں ہوتی ہے، جبکہ آپ مد لازم کو بھی دیکھیں گے شکل و صورت میں، آپ مد منفصل کو بھی دیکھیں گے، مد متصل کو بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ مد لازم میں نے کہا کلمی، یہ تو کلیئر ہو گیا کیونکہ حرف مد کے بعد سبب مد سکون آ گیا. مد لازم میں حرف مد ہمیں کہاں ہے اور سبب مد کہاں ہے، یہ آپ کا سوال ہونا چاہیے. تو اس کے جواب میں آپ کو تھوڑا سا اگلے اس میں لے آنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کہاں پتا چلے گا کہ دیکھیں ہمارے پاس اصل میں مثال ہے الف لام. اچھا الف لام میم کی مثال لے لیجیے. دیکھیں لام پر اور میم پر جو مد ہے، یہ دونوں پر جو مد ہے یہ مد لازم اور یہ مد لازم حرفی ہے کیونکہ الف لام میم حرف ہے. اب آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ لام پر کہاں ہمارے پاس حرفی مد ہے اور کہاں ہمارے پاس سکون آ گیا، کیونکہ میں نے بتایا سکون لازم ہے تبھی تو مد لازم ہے. اب دیکھیے الف کو چھوڑ دیجئے، لام کو جب آپ لمبا لکھیں گے تو لام الف میم بن جاتا ہے. لام الف میم، یہ جو لام کو جب آپ لمبا لکھیں گے پورا کھول کے لکھیں گے تو یہ کیا بن جاتا ہے، لام الف اور میم. لام زبر لا، اس کے ساتھ الف، تو الف بن گیا حرف مد، اور چونکہ میم ہے ساکن اوریجنل سکون اسی لیے تو اس کو لام پڑھیں گے. لام الف میم، میم پہ جزم ہے، ٹھیک ہے، سکون ہے، جزم ہے، اوریجنل سکون ہے. تو لام جب آپ پڑھیں گے تو الف بھی حرف مد بھی ہے اور میم یہاں پر ساکن بن کے اوریجنل سکون اس کے ساتھ ہے، تو یہ اس کا سبب بن گیا. اسی لیے لام کو جب آپ لمبا کریں گے یہ لام الف میم ہے، تو الف یہاں پر حرف مد ہے اور میم ساکن اوریجنل سکون اس کا سبب بن کے آ گئے. اسی لیے لام جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ اصل میں مد لازم حرفی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم اینڈ کریں گے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اگر مائک کھولیں اور اس میں کوئی سوال ہے تو اس کو سوال کو آپ پوچھیں 2-3 منٹ میں، اس کے بعد ہم آج کا جو صورت ہے اس کو پڑھیں. اگر کسی ساتھی کو کوئی سوال ہے آج کے لیکچر کے بارے میں، بہنوں کو مشورہ یہ ہے کہ اگر کوئی سوال ہے تو وہ چیٹ باکس میں پوچھے. اس کے بعد ہم آج کا صورت جو ہے سورۃ الکافرون پڑھیں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے کون کون سی مد ہمارے پاس آتی. جلال صاحب یا ہمارے پاس عابد بھائی ہے یا اور بھی کچھ جو ہمارے پاس مرد حضرات ہیں، اگر وہ سوال پوچھنا چاہے مائک کھول کے آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ مدوں کا اگر ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ پچھلا لیکچر اور آج کا لیکچر دونوں آپ اس کا ویڈیو بعد میں دیکھیے گا انشاءاللہ، تاکہ یہ کلیئر ہو. ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون کون سی مد ہے، یا مد اصلی ہے یا مد فرعی ہے. مد اصلی تو کلیئر ہو گئی، صرف حرفی مد ہے. مد فرعی میں ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ مد متصل ہے، مد منفصل ہے، مد لازم ہے یا مد عارض وقفی ہے. ٹھیک ہے. چلے اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر میں سورۃ الکافرون کو پڑھوں، اس کے بعد اس میں بتاؤں گا کہاں کہاں کون کون سی مد ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل، قاف کو ہم موٹا پڑھتے ہیں، یہ حروف مستعلیہ میں ہے. اس کا مخرج ہے زبان کا جڑ، زبان کی جڑ جبکہ اوپر کے تعلق کے ساتھ ملے. قل موٹا پڑھتے ہیں، حروف مستعلیہ میں ہے. یا ایہا الکافرون،
अब मुझे बताइए ये या के ऊपर कौन सी मद है? आबिद साहब आप भी अपनी माइक खोले, और जलाल साहब आप भी माइक खोले, और जो भी मर्द हजरात है अपनी माइक खोल के आप मुझे जवाब दें। ये जो आप देख रहे हैं या अय्युहल काफिरून के ऊपर, मुझे बताइए कौन सी मद आपको लग रही है? एक बहन ने लिखा ये मद लाजिम है। बहन ये मद लाजिम नहीं है, क्योंकि देखिए असल में मद जो है ये या के ऊपर जो ये अलिफ बना हुआ है ना, तो हरफी मद हो गया ये, ठीक है। उसके बाद सबबी मद जो है वो अय्यु, ये अलिफ के ऊपर जो जबर है ना ये है। अलिफ के ऊपर जब जबर होती है तो इसको हम कहते हैं हमजा, ठीक है ना। और हमने जाना कि हरफी मद के बाद अगर हमारे पास सबबी मद हमजा हो और वो अलग अलग कलमे में हो, जैसे अब या अलग कलमा है, अय्युहा अलग कलमा है, तो सबसे पहले हमने जाना कि ये मद फरई है, मद असली तो है नहीं, क्योंकि हरफी मद के बाद सबब है। वैसे भी हरफी मद अगर खाली लिखा हो तो मद बनी नहीं होती है। तो हमने जाना कि ये मद फरई। अब हमने जाना कि मद फरई में हमारे पास 4 किस्में हैं, ठीक है। मद मुनफसिल, मद मुतसिल, मद लाजिम और मद वाक़िफ, मद आरिज। मद आरिज तो है नहीं क्योंकि वाक़िफ की हालत में है नहीं। दूसरा हमारे पास आप कह रहे थे मद लाजिम। मद लाजिम तब होता जब अलिफ के बाद इस हमजा पर तशदीद होती। ये तशदीद या के ऊपर है, इस पे नहीं, हमजा के ऊपर नहीं, तो मद लाजिम नहीं है। अब या तो मुत्तसिल होगी या मुनफसिल होगी। अब देखिए या अलग कलमा है, अय्युहा अलग कलमा है, तो ये मद मुनफसिल है, इसमें फासला है। ऐसे लग रहा है कि एक ही है मगर इसका अलग अलग है। या मतलब है ए, अय्युहा होता है, फिर हम आगे पढ़ेंगे ग्रामर में इसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो मद है ये मद मुनफसिल है। 3 अलिफ के बराबर लंबा कीजिए, अय्युहल काफिरून। अब मुझे बताइए वाव पर कौन सी मद आएगी? मुझे लग रहा है आसान होना चाहिए सबके लिए। वाव साकिन माकबल पेश हरफी मद आ गया, क्या आपको लग रहा है कि इसके बाद सबबी मद आएगा? नहीं, इसके देखिए अगर हम काफिरून ना पढ़ेंगे तब सबब नहीं है, मगर चूंकि हम रुक रहे हैं, ठहर रहे हैं, तो नून को हम आर्जी तौर पर सुकून लाएंगे, काफिरून, है कि नहीं। अब वो जो आर्जी सुकून आया, वो आर्जी सुकून इस हरफ मद के लिए सबब बन गया। तो कौन सी मद आएगी यहाँ पर? मद फरई। मद फरई की कौन सी किस्म? मद आरिज वक्फी। मद आरिज आएगी क्योंकि आर्जी सुकून है ना। देखिए हरफ मद ये हो गया, सबब आपको देखना है, सबब है सुकून, वो भी आर्जी, तो मद आरिज आएगी। और उसको चूंकि वक्फ की हालत में आई तो वक्फी भी कह सकते हैं। इसके बाद ला अअबुदु। जलाल साहब आप बताइए ला के ऊपर अलिफ के ऊपर कौन सी मद है? जी माशाल्लाह, बहन ने सही जवाब दिया था, मद आरिज पहले। अब ला के ऊपर अलिफ के ऊपर कौन सी मद है? मद असली है या मद फरई? मद असली है। नहीं, मद असली नहीं है, मद असली लिखी नहीं जाती। मद फरई। देखिए ये मद फरई है। सबसे पहले आप याद रखिएगा मद असली लिखाई नहीं जाती। जब भी आप मद देखेंगे ना लिखी हुई, वो मद असली नहीं है, वो मद फरई है। अब आप देखिए हरफी मद हो गया अलिफ। आप देखिए सबब मद है, ये है ना सबब मद, हमजा है ना, ये हमजा है ना। और हरफी मद के बाद सबब मद अलग अलग कलमे में, तो इस मद को हम क्या कहेंगे? मद मुनफसिल, बराबर इसकी तरह मा तअबुदून। अब मुझे बताइए यहाँ पर कौन सी मद आएगी फिर से? मद आरिज। मद आरिज फिर से वाक़िफ की हालत में। वला अंतुम, बताइए यहाँ पर जलाल साहब फिर से कौन सी मद है? वला के ऊपर मद आरिज है, सॉरी मद इन्हें असली है या मद फरई? फरई है। मद फरई है। अब मद फरई में कौन सी मद है आपको लग रहा है? जी माशाल्लाह, बहन ने जवाब सही दिया, ये मद मुनफसिल है, इनमें फासला है। हरफ मद ये है और सबब मद ये है। वाला अलग कलमा है, अंतुम अलग कलमा है। आबिदूना। अब यही देखिए यहाँ पर वाव साकिन माकबल पेश हरफ मद तो है मगर सबब मद नहीं है, तो ये मद असली है। आप देखेंगे मद असली लिखी नहीं जाती है।
اس کے بعد آپ پڑھیے ما اعبد, ما, یہاں پر آپ دیکھیے حرف مد, اس کے بعد یہ سبب مد الگ الگ کلمے میں مد منفصل, ولا انا حرف مد سبب مد الگ الگ کلمے میں مد منفصل, عابد ما عبدتم ولا حرف مد سبب مد الگ الگ کلمے میں مد منفصل, عابدون صرف حرف مد سبب مد نہیں ہے تو مد اصلی, ما اعبد حرف مد سبب مد الگ الگ کلمے میں مد منفصل, دال پہ کلکلا ہوگا کیونکہ یہ ساکن بنے گا, لکم دینکم ولی دین, عارضی سکون آئے گا تو یا پہ مد عارض آئے. ٹھیک ہے, مجھے لگ رہا ہمارا آج کا ٹائم ختم ہو گیا, تو آج اس پہ آپ پریکٹس کیجئے گا تو انشاءاللہ مزید چیزیں جو ہے مد کے بارے میں اگلا لیکچر ہمارا پریکٹس پہ ہی ہوگا شروع. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اگلا لیکچر جو ہے وہ ہم نیا ٹاپک نہیں شروع کریں گے بلکہ